rearrangement. What is phase rearrangement? Statement about phase rearrangement. Phase rearrangement, if an ester of phenol is heated with AlCl3, the acyl group attached to the oxygen atom migrate to either ortho or para position on the ring. This is called phase rearrangement. Clear? This is the statement of the arrangement, and it can be better understood if we took an example. It will be better understood. This is your, take example of phenyl propionate. This is your phenyl propionate. Phenyl propionate. Okay. Heat it with AlCl3 about temperature 413 to 423 Kelvin, and the acyl group will migrate to this position or this position. दोनों में कोई पोजीशन है, दोनों पोजीशन को आ सकता है. इसे ए पोजीशन में ऐड हो सकता है, ए पोजीशन में ऐड हो सकता है. लेट इट ऐड विथ ऑर्थो पोजीशन. दिस विल बी CO CH2 CH3. This is ortho hydroxy phenyl ethyl ketone. Likewise, it will also give para hydroxy phenyl ethyl ketone, and para hydroxy phenyl ethyl ketone is CO CH2 CH3. This is your reaction. Everything clear? The statement is clear and the reaction is clear. Next step, it will be a mechanism, how the rearrangement takes place. The mechanism can be better understood. This is your mechanism, can be better understood. Mechanism. If we take a general example, let this is a ester of a phenol, OCO or ester of a phenol. Okay, and treat with AlCl3. You already know AlCl3 is electron deficient group. It will attack oxygen atom having electron is also there. It will attack. After attack, what will happen? This will be O plus and CO or let it write CO or in this position, and AlCl3 minus. Why is AlCl3 minus? Because it gain electron and it donate electron. After donation, it becomes electron short, and after receiving, it becomes sufficiency. That means Al minus and O plus. Here notice, this is your oxygen atom. ये तो इसी से ले सकता नहीं. Suppose if he gain electron from here, it will come back to initial position. इसी से नहीं ले सकता है. और ये RCO जो है ना, ये अच्छा लिविंग ग्रुप. I have already told this is a
गुड लिविंग ग्रुप। जब लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा, ऐसे वो निकल जाएगा। क्या कैसे निकलेगा ना, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड विल मूव अवे। दैट मीन्स in this step minus RCO plus, and also this is leaving group and better stabilized by resonance, that's why it go away and what remains, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज वो खत्म हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे के चला गया। दैट मीन्स वो Al माइनस Cl3, इसी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑक्सीजन उसका पुराना टेंडेंसी गेन कर गया। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, जब पुश करेगा ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये तो बात क्लियर है। अभी ऑक्सीजन है उसका नॉर्मल पोजीशन में आ गया। नॉर्मल पोजीशन इट बिहेव जस्ट फॉर द ऑक्सीजन एटम एक्चुअली रिएक्ट्स और बिहेव्स। ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, ये ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने से क्या होगा ना, इसमें RCO प्लस जो है ना वो एक इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से एक्ट करता है। दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड यू नो व्हेन एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, योर ऑक्सीजन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा पोजीशन को अटैक के लिए अलाउ करता है ना, ऑर्थो पोजीशन नहीं तो पैरा पोजीशन एक्टिवेटिंग ग्रुप, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा पोजीशन को अलाउ करता है। अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा पोजीशन को ये मैंने अलाउ करेगा, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, और पैरा पोजीशन को अलाउ करेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, यू सी ये ब्रेक हो गया और ये ऑक्सीजन जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ये Cl3 माइनस इसमें, एंड द डबल बॉन्ड इज आर सच एंड दिस पोजीशन allow the attack of this RCO. Okay, and in this position ये क्या आर्गुमेंट आ सकता है, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कैसे हो गया ना, ये जब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ये तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया। डबल ब्रेक करने से अवेलेबल ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया ना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको देने से ये न्यूट्रलाइज हो गया। इसका कोई इसमें डाउट नहीं है, इतना तक सब क्लियर है। नेक्स्ट पोजीशन, एक स्टेप जो है ना, आई एम राइटिंग टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज O Cl3, I can write this is positive and this is negative, it will neutralize HRCO। फिर ये क्या करता है ना, रिगेन ऑफ आरोमेसिटी, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, ये रिगेन ऑफ आरोमेसिटी करेगा। करने से ये बॉन्ड टूट गया, इसके ऊपर माइनस साइन आ गया, ये हाइड्रोजन है उसके जाके लग गया और ये Cl3 क्या हो गया, रिलीज होके चला गया। सिंपल स्टेप, इसमें कोई ये नहीं। This is your and a regain of double bond, this is OH, Cl3 निकल के चला गया और बाकी क्या रहा RCO। दिस इज द प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट, दिस इज द ऑर्थो प्रोडक्ट। लाइकवाइज फॉर पैरा प्रोडक्ट व्हाट विल हैपन, दिस position has been completed, let us try for para position. What will be, this is your Cl3 for para position, this will also attack the oxygen atom having sufficient number of electron and is electron deficient, and the reaction will be likewise ortho position. What will happen, this is your O, this becomes O plus and this is O COR, okay, and it becomes AlCl3 minus, automatically and obviously it gains electron and it lose electron, and that is this thing happens, and this is a good living group, you know, and resonance stabilize, वो चला जाएगा। चला जाने के बाद तो ये ऑक्सीजन ना अपना पोजीशन जो है नॉर्मल पोजीशन गेन करेगा। नॉर्मल पोजीशन गेन करके होने के बाद ये हो गया दिस थिंग, एंड ऑक्सीजन का जो नेचुरल कैरेक्टर वो विल शो करेगा। शो करने से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन
पुशिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक नहीं होगा तो ये इधर मूव करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे? दैट मीन्स इट विल हैपन लाइक दिस, दैट मीन्स इट विल हैपन लाइक दिस। दिस इज वो प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, AlCl3 माइनस, and this breakdown and this will allow the attack of your RCO plus, that means RCO plus इसको अटैक करने के लिए ये अलाउ करेगा। अलाउ करने के बाद द इट विल बी लाइक दिस, O प्लस ACl माइनस, वो न्यूट्रलाइज AlCl3 and this will be H RCO and double bond is here. Okay, and one thing, to regain the aromaticity, this will give the electron pair and will release, and it will be move like this position, and this will also break down single bond and minus sign is there, here H plus, this will be added to this position and the product will be what is, this is your double bond regain हो गया, दिस इज डबल बॉन्ड रिगेन हो गया। हाइड्रोजन आटम ये ऑक्सीजन माइनस उसके साथ मिलके वो H हो गया और AlCl3 निकल के चला गया और बाकी रहा योर RCO। दिस इज पैरा प्रोडक्ट, दोनों टाइप का प्रोडक्ट इसमें। ऑर्थोपोसिस प्रोडक्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज पैरा प्रोडक्ट।